Hello students, welcome to Mathematics of Class 4, Chapter 4, Tick, Tick, Tick. This is the part 4 of this chapter. This is the last part of your textbook. Okay students? So I hope you understand which I explained you in the previous part. Okay. So you must learn this chapter, though this is not going to come in exam. Okay. But the timing, read karna or likhna, it's very important. Right students? So you must learn it. Now students, let's continue our chapter. So now you open the textbook page number 48. Are you watching videos properly? Okay. Are you watching now? So students, you watch the video properly and try to write all the answers in your textbook also. So let's start our new topic. So students, in the previous part we have seen that how to read the time, how to write the time. Okay, and in the last video, that is the part 3, I have shown you how to write the dates. Okay, in the form of words also and in numbers also. Now let's more discuss about on date. Okay, on 15 May 2006, Chandran went to a shop to buy butter. He checked the packet to see if this butter was safe to eat. ये जो चंद्रन है वो बटर लेने जाता है, वो चेक करता है कि ये जो बटर है वो बराबर है कि नहीं, खाने में सेफ है या नहीं है. ओके, सो हाउ ही कैन चेक इट. इट वॉज रिटन ऑन द पैकेट बेस्ट बिफोर 180 days फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग. Are you also notice that when you buy any products, that is written on it, so you can eat on from how many days this product. So on butter pack what is written, best before 180 days from the date of packing. यानी जो पैकिंग हुआ है उससे 180 डेज में आप उसको कंज्यूम कर सकते हो. आफ्टर 180 days it is very unsafe to eat. Okay, so that is the given. What is that? Let's discuss more about it. Then he checked the date of packing. It was 15/1/06. What is 15/1/06 means? Which date, which month and which year? Who will say this? So students, 15 is a date, 1 is a month. 1 means which month? January. And 06 means year. तो स्टूडेंट मैंने से आपको बताया था डेट कौन सा है, तो यहाँ पे ये डेट है. सेकेंड वाला जो नंबर होता है वो मंथ है और लास्ट वाला जो नंबर होता है वो 06 है. जनरली डेट फॉर्मेट इज़ लाइक दैट, बट इन सम वे द डेट फॉर्मेट इज़ लिटिल बिट डिफरेंट ऑल्सो, बट दैट यू कैन गेट एन आइडिया एज पर द नंबर्स. ठीक है. सो व्हाट इज़ हियर, 15 इज़ अ डेट, 1 is a month. 1 means which month? January. And 06 is a year. So 15 January 2006 is the packing date. Packing date means what? जिस दिन वो बटर पैक हुआ था. वी कैन से द मैन्युफैक्चरिंग डेट ऑल्सो. आपने देखा होगा कि जनरली आप जब भी कुछ बाय करते होगे तो देखा होगा MFG लिखा होगा. MFG का मतलब होता है MFG डेट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग डेट, यानी इस दिन को ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है. राइट. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस. हेल्प हिम फाइंड आउट इफ़ ही शुड बाय दिस बटर और नॉट. आपको फाइंड आउट करना है कि ये बटर वो बाय कर सकता है या नहीं है. इन विच मंथ वॉज द बटर पैक्ड. कौन से मंथ को बटर पैक्ड हुआ था. तो हमें यहाँ पे डेट दी गई है, कौन से मंथ को बटर पैक हुआ था, 15/1/2006. तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, 15/01/06. Okay, so this is called the manufacturing date. You can say the packing date also. Okay, is in butter produce हुआ है. Now let's see. So our next question, which month will it be 180 days after 15/1/2006. यानी हमारा जो पेकिंग डेट है 15 जनवरी 2006, उसके 180 डेज कब कंप्लीट हो गए, क्योंकि हमें 180 डेज तक हम बटर को यूज़ कर सकते हैं. राइट स्टूडेंट्स. सो हम पहले बात करेंगे 180 डेज. 180 डेज मीन्स हाउ मेनी मंथ्स वी कैन यूज द बटर. ओके, 1 month हैज़ 30 days. So 2 months 60, 3 months 90, 4 months 120, 5 months 150, 6 months 180. General counting. Okay, I am not counting 30, 31, 28 days like this. Generally we are considering 30 days. So 6 months के बाद we can't use the butter. Okay, so 6 months कैसे कंप्लीट होगा, तो अगर 6 months जनवरी से कंप्लीट होगा तो कौन से मंथ तक हम यूज़ कर सकते हैं. तो हम फर्स्ट वी विल राइट हियर 15/1 मीन्स 15 जनवरी से लेके 15 फरवरी तक. ओके, हमारा 1 month कंप्लीट हो जाएगा. सो हमें काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, फरवरी से. February, then March is a 3rd month, April 4th month, then May 5th month, June 6th month,
and July is the 7th month. Let's count it. अब 6 मंथ हुए हैं. मैंने आपको बोला 15 मंथ से लेके 15/2 यानी एक मंथ 15 फरवरी को ख़त्म हो जाएगा. सो 1 मंथ, 2, 3, 4, 5 and 6 यानी जुलाई 15 तक हम बटर को यूज़ कर सकते हैं. 180 डेज जुलाई 15 में ख़त्म होगा. तो हमें यहाँ पे लिखना है कि 15 विच डेट इज इवन 7 15/7/06 तक हम बटर को यूज़ कर सकते हैं. ओके, नॉट एग्जैक्टली 28, 31, 30 डेज. आई हैव कंसिडरिंग 30 डेज एज पर रेगुलर मंथ. ओके, सो 15 जुलाई तक हम बटर को यूज़ कर सकते हैं. समझ में आया? अबाउट 180 डेज क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? 180 डेज मीन्स 6 मंथ्स वे ऑफ कंसिडर्ड. सो हम जनवरी से यूज़ करेंगे, फरवरी में 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा. तो जब भी आपको काउंट करना हो, मंथ काउंट करने हो, तो जनवरी को काउंट नहीं करना है. यू स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ मीन्स फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई. ओके, सो जुलाई में 6 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे. देन 15 जुलाई तक हम बटर को यूज़ कर सकते हैं. ओके, जैसे हम नंबर 2 + 3 करते हैं तो हम 2 से नहीं 3 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं ना. सो सेम वे आपको जो भी मंथ की काउंटिंग करनी है तो वो पर्टिकुलर मंथ को काउंट नहीं करना है, नेक्स्ट मंथ से स्टार्टिंग करनी है. बिकॉज हम 15 से 15/2 करेंगे तभी 15/2 को ही एक मंथ कंप्लीट होगा ना. इसलिए हमें काउंटिंग फरवरी से करनी है, नॉट फ्रॉम जनवरी. राइट. नाउ नेक्स्ट वन इज कैन चिल्ड्रन ईट इट ऑन 15 मई 2006. वो क्या 15 मई 2006 को ईट कर सकता है? ऑफ कोर्स. मई मीन्स 5th मंथ, 15/5/2006. सो हमारा ये बटर कब एक्सपायर हो रहा है? 15/7/2006 को. यानी मई कम्स बिफोर द जुलाई. सो येस ही कैन ईट. ओके, तो हमें यहाँ पे आंसर क्या लिखना है? येस. यानी हमें यहाँ पे जो बताई गई है this one 15/1/2006 is a packing date that is called the MFG and manufacturing date. और बटर 180 डेज के बाद यूज़ नहीं कर सकते यानी that is called the expiry date, EXP date. आपने जनरली पढ़ा होगा when you buy the medicine, when you buy any product, dairy products, there is written MFG and expiry date. So you must see that date and then you buy the products. Okay. So यहाँ पे 15 जुलाई तक वो बटर को यूज़ कर सकता है in the same year. Okay. Now let's see. Have you seen the medicine which have the expiry date written on them? Just now I told you. Okay, it's tell you after which date it is unsafe to take the medicine, and after expiry date it is harmful to take the medicine. Okay, it's unsafe for us. So आपको उसको देख के लेना चाहिए. Whenever you whenever you buy any product, you must see the date and then you buy the product. Okay, now let's see the further topics on the same page. So here given, find out which are the other things that come with an expiry date. कौन कौन सी चीज़ें जो एक्सपायरी डेट के साथ आती है? एक्सपायरी डेट मीन्स उस दिन तक ही आप यूज़ कर सकते हो. आफ्टर एक्सपायरी डेट व्हेन यू विल यूज़ इट इज़ अनसेफ फॉर यू. वो अच्छा नहीं है आपके हेल्थ के लिए. नाउ ऑन अ कप सिरप इट वॉज रिटेन. कफ सिरप, आप जब कफ सिरप पीते हो तो आप देखना, अब अगर आपने नहीं देखा है तो आप देखना. देखो यहाँ पे दिखाया गया, ऐसे लिखा होगा MFG डेट एंड EXP डेट. MFG डेट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग डेट, जिस दिन वो प्रोड्यूस हुआ है. EXP मीन्स ये यहाँ तक आप यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ द लास्ट डेट टू यूज़ इट एंड आफ्टर यू कांट यूज़ इट. राइट. नाउ व्हाट इज़ MFG डेट ऑन सिरप? 703. अभी तक हमने देखा कि डेट 3 फॉर्मेट में थी. फर्स्ट इज़ अ डेट, then is the month and then is the year, but here only 2 numbers are given. So now it shows the date, which number shows the month and which number shows the year. अब यहाँ पे 2 ही नंबर है तो क्या कंसिडर होगा स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स when the 2 numbers give, so only the given is the month. First number shows the month and second number shows the year. Date is not given. ओके, जब 2 नंबर का डेट का फॉर्मेट हो तो आपको मंथ और ईयर ही दिखाएगा, डेट नहीं दिखाएगा. ठीक है, तो आप देख सकते हो 703 यानी 7 मीन्स विच मंथ? जुलाई. 03 मीन्स 2003. दिस शोज इज मेड इन जुलाई 2003 यानी ये क्या दिखाता है? वो जुलाई 2003 में मेड हुआ है. EXP डेट 705. समझ में आ गया? अगर 2 नंबर्स ही है डेट में तो क्या दिखाएगा? फर्स्ट नंबर मंथ एंड सेकेंड नंबर ईयर. 7 मीन्स जुलाई. ओके, एंड 05 मीन्स 2005. तो आप देख सकते हो मैन्युफैक्चरिंग कब हुआ है? 2003 में.
मैन्युफैक्चरिंग कब हुआ? 2003 में। और एक्सपायर कब हो रहा है? 05 मीन्स 2005 में। यानी कितने टाइम आप यूज़ कर सकते हो? 2003 है तो 2004 एंड 2005, 2 years यू कैन यूज़ दिस मेडिकल सीरम। समझ में आ रहा है? नाउ सी स्टूडेंट्स, दिस shows the month and year till when it is safe to take। यहाँ पे दिखा रहा है कि आप यह इतने टाइम तक आप लोग मेडिसिन को कंज्यूम कर सकते हो, इट्स सेफ फॉर यू। नाउ व्हाट मंथ एंड ईयर इज रिटर्न एज। अब आपको ये लिखना है कि ये कौन सा मंथ एंड ईयर है। 705 मीन्स व्हाट? 7 मीन्स विच मंथ स्टूडेंट्स? फर्स्ट नंबर क्या दिखाता है? मंथ, दैट इज द जुलाई। एंड 05 मीन्स 2005। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? समझ में आ रहा है ना? पहले जब हमारे पास 3 नंबर्स का फॉर्मेट था उसमें फर्स्ट डेट था, देन मंथ एंड देन ईयर, बट हियर 2 नंबर फॉर्मेट, तो फर्स्ट इज शोइंग द मंथ एंड ईयर, नो नंबर इज शोइंग द डेट। ओके, नाउ नेक्स्ट, वुड इट बी सेफ टू टेक द इनफ कफ सिरप इन सितंबर 2005? क्या कफ सिरप सितंबर 2005 में लेना सेफ है? अभी हमने देखा कि सिरप कब एक्सपायर हो रहा है? 705 यानी जुलाई 2005 में एक्सपायर हो रहा है, राइट? जुलाई के बाद क्या आएगा? जुलाई, अगस्त एंड देन सितंबर विल कम, दैट मीन्स इट इज़ अनसेफ टू टेक। जुलाई तक ही हम कंज्यूम कर सकते हैं, जुलाई तो भी 2005 तक, राइट स्टूडेंट्स? और हमें यहाँ पे बोला है सितंबर 2005, दैट मीन्स दैट इज़ अनसेफ। आपको मंथ के साथ ईयर को भी देखना है। ओके, मंथ तो देख लिया आपने, आपको ईयर को भी देखना है। अगर सितंबर 2003 बोला होता सो दैट इज़ सेफ टू टेक। ओके, हम तो 2003 से लेके 2005 तक कंज्यूम कर सकते हैं, बट अगर आफ्टर जुलाई 2005 कोई भी नंबर आता है, इट्स अनसेफ टू टेक। सो व्हाट आंसर हैज़ टू राइट? हमें यहाँ पे क्या लिखना है? नो, वी कांट कंज्यूम दिस मेडिकल सिरप, कफ सिरप। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज। टुटुन मिस्ड द ट्रेन। यहाँ पे एक स्टोरी दिया गया है स्टूडेंट्स। सो टुटुन स्कूल हैज क्लोज फॉर द समर हॉलीडेज। ही वेंट टू हिज ग्रैंडमा's प्लेस। He met a lot of his cousins there. He was enjoying himself and didn't want to go back home. वो लोग बहुत सारे कजिन्स ग्रैंडमास की घर पे गए हैं, वहाँ पे बहुत इन्जॉय कर रहे हैं और उनको वापस नहीं आना है। Didn't pack your bag. The train leaves at 5:30 in the evening. Okay, so what our grandma say? Bag pack करो, 5:30 को आपकी इवनिंग में ट्रेन है। Oh no, we are going back so soon. I wish we miss our train. मैं तो दुदुन क्या कहता है कि उसको घर नहीं जाना है, तो वो कहता है कि मैं अपनी ट्रेन मिस कर दूँ। ओके, दैट ही इज़ थिंकिंग। Now Tutun and his parents reached the station at 5:15. वो टुटुन और उसके पेरेंट्स कहाँ पे पहुँच गए? स्टेशन पे कब पहुँचे? 5:15 को, यानी 5:15 को पहुँच गए। ठीक है, बट गेस व्हाट, दे हैड एक्चुअली मिस द ट्रेन। वहाँ जाके क्या हुआ? ट्रेन एक्चुअली मिस हो गई थी। सो स्टूडेंट्स, हाउ डज हैपन? 5:30 का तो ट्रेन का टाइम है और वो लोग 5:15 को तो ट्रेन पे पहुँच गए थे। सो हाउ दे कैन मिस द ट्रेन? उन्होंने ट्रेन क्यों मिस कर दी? सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे उन्होंने बताया है द ट्रेन टाइमिंग इज़ 5:30, दैट मीन्स इट्स अ मॉर्निंग टाइम। मैंने आपको जैसे बताया था कि रेलवे स्टेशन है, उस पर ट्रेन का जो भी टिकट्स पे टाइम लिखा होता है, दैट showing in 24-hour clock format. In the first video I tell you the clock format in 2 types, 12-hour also and 24-hour also. यानी 12-hour होता है तब हम 1 to 12 नंबर यूज़ करते हैं और मॉर्निंग इवनिंग को दिखाने के लिए हम AM और PM यूज़ करते हैं। बट जब 24-hour क्लॉक का टाइम होता है तब हम AM और PM नहीं दिखाते, वी जस्ट राइट द टाइमिंग। सपोज कि रात के 11 बजे दिखाने हैं मुझे, ठीक है, सो आई विल जस्ट राइट 23 आवर्स, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 नंबर के बाद वापस क्लॉक 1 पे आएगा, आवर एंड 1 पे आएगा तो वो 13 आवर्स होगा। ठीक है, देन 2 पे आएगा तो 14 आवर्स, 3 पे आएगा तो 15 आवर्स। ओके, समझ में आया? यानी 12 नून से जो 12 मिडनाइट का जो टाइम है जिसको हम PM कहते हैं, तो वो 24-hour क्लॉक में नहीं होगा। वहाँ पे 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 20 24 आवर वो फॉर्मेट में काम करेगा।
सो दैट इज़ अ 24 आवर क्लॉक फॉर्म है। यहाँ पे जो 5:30 है दैट इज़ शोइंग द मॉर्निंग टाइम, इट्स नॉट एन इवनिंग टाइम। अगर इवनिंग होता तो कितना टाइम होता है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा है कितना टाइम होगा? लेट्स सी हियर, सपोज दिस इज द क्लॉक, राइट स्टूडेंट्स? See here, I am writing the number here. This is the 12, this is 6, this is 3 and this is 9. Okay, आपको पता है यहाँ पे 1 2 4 5 7 8 10 and 11. Okay, this is our clock. 1 to 12 तक ठीक है, ठीक है। अगर बाद में वापस जो हैंड है वो घूम के 1 पे आएगा तो कितना आवर होगा? 13। 2 पे आएगा तो 14, 3 पे 15, देन 16, 5 पे आएगा 17, 18, 19, 8 पे आएगा तो 20 एंड 21 एंड 22 देन 23 और वापस 12 पे आ गया तो 24। 1 आवर 1 डे कंप्लीट। ओके, समझ में आया? सो 24 आवर क्लॉक होता है, उसमें इस तरीके से होता है। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? यानी 1 1 2 3 एज इट इज़ चलेगा। अगर 5:30 है डैट मीन्स इट्स अ मॉर्निंग 5:30 टाइम। अगर इवनिंग 5:30 होता तो मैंने आपको बोला था ना, सो 13 14 15 16 17 आवर्स एंड 30 मिनट्स होता। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? सो दैट इज़ नॉट रिटन AM और PM, दैट मीन्स रेलवे स्टेशन, बस डेपो and then airport, they are using a 24 hour clock time. ओके, सो जब भी आप फ्लाइट्स के टिकट लो या ट्रेन की बस की टिकट लो उस पर आपको यही टाइमिंग मिलेगा। दे आर नॉट राइटिंग AM PM, दे विल जस्ट राइट 18 आवर्स 19 आवर्स। ओके, सो यू हैव टू काउंट एज पर द आवर। जैसे आपको पता चल गया कि 18 आवर्स है तो आपको 12 के बाद काउंटिंग स्टार्ट करने देंगे। 1 13 14 15 16 17 18, यानी कितने बजे हो गए? इवनिंग के 6 बजे हो गए। समझ में आया आपको? क्लियर? 24 आवर क्लॉक समझ में आया? इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया? ट्रेन को मिस कर दिया। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। Actually, the train had left at 5:30 in the morning. Student parents were upset. They asked the station master. जैसे मैंने आपको समझाया वैसे वो लोग पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ ये? The railway will ride 7:13 for 5:30 in the evening. समझ में आया? अगर जब इवनिंग का टाइम होता तो रेलवे वाले क्या लिखते टिकट पे? 7 hours and 30 minutes. जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, तो समझ में आया? सो बिकॉज दे यूज़ अ 24 आवर क्लॉक, वो लोग क्या यूज़ करते हैं? 24 आवर क्लॉक का यूज़ करते हैं। दे आर नॉट रिपीटिंग द नंबर्स। AM और PM में हम क्या करते हैं? 1 to 12 नंबर को ही रिपीट करते हैं। अगर 12 नून से 12 मिडनाइट का टाइम है तो हम PM लिखते हैं। अगर 12 मिडनाइट से 12 नून का टाइम है यानी रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक का टाइम है, हम उसमें AM लिखते हैं। ओके, और दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे का जो टाइम है उसमें हम क्या लिखते हैं? PM लिखते हैं। बट जब हम 24 आवर यूज़ करते हैं देयर इज़ नो AM PM, दे आर यूजिंग 1 to 24 नंबर्स फॉर शोइंग द टाइम। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। स्टूडेंट्स हियर यहाँ पे 12 आवर क्लॉक टाइम दिया है और हमें उसको 24 आवर क्लॉक में लिखना है। तो देखो यहाँ पे 1 o'clock इन द आफ्टरनून, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 1 o'clock इन द आफ्टरनून यानी सी हियर यहाँ पे 1 o'clock हुआ है। मैंने आपको बोला कि रात के 12 बजे से यानी रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक, जिसको हम AM कंसिडर करते हो, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, वो 12 ही बजेंगे। अब दोपहर के 12 बज गए, अब तो पूरा ये घड़ी घूम के वापस रात तक आएगा, यानी 12 नून से 12 मिडनाइट का जो टाइम है हम जिसमें PM लिखते हैं 24 आवर क्लॉक में ऐसा नहीं होता है। 12 के बाद जैसे ही 1 बजेगा तो हम उसको क्या कंसिडर करेंगे? 13, राइट? तो हमें क्या लिखना है? 13 आवर्स। देखो यहाँ पे लिखा है ना 13 आवर्स इन 24 आवर क्लॉक टाइम। 12 आवर क्लॉक में तो हम 1 o'clock ही लिखेंगे इन द आफ्टरनून, मीन्स 1 PM लिख सकते हैं, ठीक है? बट हमें यहाँ पे जो टाइम दिया है वो 12 आवर क्लॉक से दिया है और हमें आंसर 24 आवर से लिखना है। अगर 2 o'clock हुआ होगा तो क्या लिखेंगे? 14 आवर्स। देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, 2 o'clock है तो 14 आवर्स है यहाँ पे, राइट? अगर 3 o'clock होता तो क्या लिखते हैं 24 आवर में? 15 आवर्स, ठीक है? लेट्स सी हियर। तो 3 o'clock है तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है स्टूडेंट्स? 15 आवर्स। 15 के बाद आपको लेट्स सी, फर्स्ट वी चेंज द कलर, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 15 देन
2.00 और उसके बाद क्या लगाना है, HOURS आवर्स। समझ में आ रहा है। अब 3:30 है मीन्स 15 hours and 30 minutes। ओके, अब 6 o'clock इन द इवनिंग है। देखो यहाँ पे आफ्टरनून और इवनिंग के टाइम के लिए हम 13, 14, 15, 16 यूज़ करेंगे। 6 o'clock है स्टूडेंट्स, तो कितने आवर्स हुए होंगे, सी हियर, वेर इज 6 o'clock हियर, सो दैट इज 18 hours। ओके, 6 o'clock में हमें यहाँ पे क्या लिखना है, 18 hours। आप यहाँ पे लिखोगे 18 hours। ठीक है, 9 o'clock तो हम काउंट कर लेते हैं, 6 के बाद 7, 8 एंड 9, सो 9 o'clock को कितना हुआ होगा, 21 hours। ओके, सो व्हाट हैज़ टू राइट हियर स्टूडेंट्स, 21 डबल डॉट देन 00 hours। 12 o'clock एट मिडनाइट। अब वापस पूरा घूम के यहाँ पे 12 o'clock पे आ गया, तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, हम क्या लिखेंगे, 00 hours मीन्स यहाँ पे पूरा डे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना है 00 2.00 hours। दैट मीन आफ्टर 1 minute द न्यू डे विल स्टार्ट, अगेन स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 1 2 3 लाइक दैट। समझ में आया। मिडनाइट का मतलब होता है रात के 12 बजे। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये आपको कंप्लीट करना है जैसे मैंने आपको समझाया है। आर यू क्लियर अबाउट 12 hour clock एंड 24 hour clock टाइमिंग, क्लियर। ओके, लेट्स सी द लास्ट पेज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सपोज अ ट्रेन लीव्स एट 8:30 एट नाइट, द टाइम रिटन ऑन द रेलवे टिकट वुड बी। अगर सपोज ट्रेन 8:30 है रात की, नाइट की, तो रेलवे टिकट पे क्या टाइम लिखा होगा स्टूडेंट्स। तो हमें अभी काउंटिंग किया, 12 के बाद हमें काउंटिंग कर लेनी है। देखो 13, लेट्स सी इन द क्लॉक, 12 के बाद अगर वापस 8:30 नाइट को है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे, राइट। तो अगर हम यहाँ से दिखेंगे तो कितना आवर्स होगा, 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। सो अगर रेलवे टिकट के हिसाब से 20 hours एंड 30 minutes का टाइमिंग होगा स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पे लिखना है 20 hours एंड 30 minutes। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, क्लियर। ओके, लेट्स सी अबाउट इट। 12 hour clock each time comes twice in a day। यानी 12 hour clock में हर एक टाइम 2 बार आता है, जैसे 5:30 इन द मॉर्निंग भी आता है, 5:30 इन द इवनिंग भी आता है। तो मॉर्निंग के लिए हम क्या लिखते हैं, 5:30 AM, और इवनिंग के लिए हम क्या लिखते हैं, 5:30 PM, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें कि हम मॉर्निंग की बात कर रहे हैं या इवनिंग की बात कर रहे हैं। नाउ व्हाट अबाउट 12:30 इन द आफ्टरनून। अगर 12:30 इन द आफ्टरनून है तो उसका क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सो दिस इज 12:30 PM, यानी 12 बजने के बाद 1 भी मिनट ऊपर चला जाता है तो AM की जगह क्या हो जाएगा, PM। सो 12 o'clock एट नून वी कैन यूज़ PM टिल मिडनाइट। मिडनाइट तक आपको, यानी 12 दोपहर के 12 बजे से 1 भी मिनट ऊपर चला जाता है रात के 12 बजे तक, तो हमें PM ही लगानी है। समझ में आया। PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियन एंड AM का मतलब होता है एंटी मेरिडियन। क्लियर स्टूडेंट्स। ओके, सो स्टूडेंट्स आपको यहाँ होमवर्क में सनराइज और सनसेट का टाइम अपने आप लिखना है इन द फॉर्म ऑफ AM और PM। आस्क योर पेरेंट्स एंड देन यू कंप्लीट। दैन स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको 24 hour क्लॉक यूज़ कहाँ पे होता है उसके नेम लिखने हैं। ऑलरेडी आई एक्सप्लेन यू, रेलवे स्टेशन पे होता है, बस डेपो पे होता है एंड एयरपोर्ट पे होता है। दे आर यूजिंग अ 24 hour क्लॉक फॉर्मेट, दे आर नॉट यूजिंग अ 12 hour क्लॉक फॉर्मेट। ओके, समझ में आया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। सो स्टूडेंट्स, so I have given one homework. So this clock I have given, that time has to write in your comment box. Okay, so you have to give the answer in comment box. आपको यहाँ पे जो क्लॉक दिखाया गया है तो उसमें आपको कौन सा हैंड दे के टाइम देखना है, वो देख के आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेजना है। Students, you are not giving the answers in the comment box. Try to give answers so I can get an idea how you are understand the chapter. Okay, आपको कितना समझ में आ रहा है, that I can understand. ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ए करके आपको फर्स्ट क्लॉक का आंसर लिखना है और बी करके सेकेंड क्लॉक का। सो राइट योर आंसर विथ योर नेम। क्लियर। सो ट्राई टू गिव आंसर्स बाय मोर स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।